السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ لبنان میں پیجرز میں دھماکے، 8 ہلاک، اسرائیلی ہیکنگ کا دعویٰ، 2800 سے زائد زخمی۔ دھماکوں میں استعمال کیے گئے پیجرز تائیوان کی کمپنی نہیں بنائے، تائیوانی کمپنی گولڈ اپول نے سختی سے الزام کو کیا مسترد۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کی قرارداد کے حق میں آج ہو رہی ہے ووٹنگ، اسرائیل سے غزہ میں غیر قانونی موجودگی ختم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم مودی 21 ستمبر کو 3 روزہ دورے پر ہوں گے امریکہ روانہ، کوارڈ سربراہی اجلاس اور UN جنرل اسمبلی سے کریں گے خطاب۔ غزہ میں حماس کا اسرائیلی فوج پر حملہ، کمانڈر اور پہلی خاتون فوجی سمیت 4 اہلکار ہلاک۔ اور غزہ میں اسرائیل کی شدید بمباری، عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، متعدد افراد دب گئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک تقریباً 40,000 افراد شہید۔ تو یہ تھی سرخیاں، اب خبریں تفصیل سے۔ لبنان کے سیکیورٹی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے حزب اللہ کے لیے تائیوان کے بنائے گئے 5000 پیجرز یعنی صوتی آلات میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا۔ عسکر پسند گروپ حزب اللہ کے سینکڑوں ارکان نے زیر استعمال پیجرز منگل کو لبنان اور شام میں تقریباً بیک وقت پھٹ گئے تھے، جس کے نتیجے میں ایک 8 سالہ بچی سمیت کم از کم 9 افراد ہلاک جبکہ 3000 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ زخمی ہونے والوں میں لبنان میں ایران کے سفیر بھی شامل ہیں۔ عہدیداروں نے اس رپورٹ حملے کے لیے اسرائیل کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ دوسری طرف تائیوان کی کمپنی گولڈ اپولو نے تردید کی ہے کہ لبنان میں ہونے والے دھماکوں میں استعمال کیے گئے پیجرز ان کی کمپنی نے بنائے تھے۔ کمپنی انتظامیہ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ دھماکے میں استعمال ہونے والے پیجرز یورپ کی ایک کمپنی نے بنائے تھے جسے تائیوان کی فرم کے برانڈ کو استعمال کرنے کا حق حاصل تھا۔ تائیوان کی کمپنی گولڈ اپولو کے بانی نے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہماری مصنوعات نہیں ہیں، ہم سے وہ مصنوعات کیسے منسوب کر سکتی ہیں جو ہم نے بنائی ہی نہیں ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کی قرارداد کے حق میں آج ووٹنگ ہو رہی ہے، جس میں اسرائیل سے غزہ میں غیر قانونی موجودگی کو ختم کرنے اور مقبوضہ مغربی کنارے کو 1 سال کے اندر خالی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فلسطینی قرارداد میں اسرائیلی افواج کے انخلاء اور یہودی آباد کاروں کی بستیوں کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس قرارداد کو اقوام متحدہ کی 193 رکنی جنرل اسمبلی میں ووٹنگ کے لیے ایسے وقت پیش کیا گیا ہے جب غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیل کی جنگ کو اگلے ماہ کی 7 تاریخ کو 1 سال ہو جائے گا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اوپر فائرنگ کے واقعات کو امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی نائب صدر کملا ہیرس دونوں کی تقاریر کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹک لیڈرز کے بیانات کی وجہ سے مجھ پر دوسری بار قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان نے روزانہ کی پریس بریفنگ میں میڈیا کے سوالات کا جواب دیا اور کہا کسی صورت میں یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ Evidence, because I want to be very clear here. The President and the Vice President have always forcefully condemned violence in all forms. It is not the time to tear Americans apart. Donald Trump blamed President Biden and Vice President Harris for the latest assassination attempt against him. He claimed without evidence that their rhetoric is causing him to be, quote, shot at. How is the White House responding to those comments? Well, I love that you added without evidence, because I want to be very clear here. The President and the Vice President have always forcefully condemned violence in all forms, including political violence, and we certainly have never encouraged any violence in any way. If anything, this is a president and a vice president has been pretty forceful about that. When it comes to differences in issues and policies, we believe that there should be a conversation. There was a debate just last week, right? There should be a conversation and a back and forth about that, a healthy conversation. And it's crucial that we do that. And the president has also said, when it comes to, violent rhetoric, we got to bring the temperature down. You heard that directly from this president. And it is not the time to tear Americans apart.
We cannot do that or divide our country. The president and the vice president is always going to call that out. But they have been very clear, very forceful on condemning any form of political violence. इधर वज़ीर-ए-आज़म मोदी 21 सितंबर को 3 रोज़ा दौरे पर अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो क्वाड सरबराह इजलास और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुस्तक़बिल की सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी कम्युनिटी की एक तक़रीब में भी खिताब करेंगे। इस दौरे के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडन, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ और जापानी हम मनसब फूमियो किशिदा के साथ चौथे क्वाड लीडर समिट की मेज़बानी भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि वो अगले हफ्ते हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका के दौरान उनसे मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने ये ऐलान मिशिगन में इंतखाबी जलसे के दौरान किया, मगर मुलाकात की जगह के बारे में तफसीलात फराहम नहीं की। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की आखिरी मुलाकात फरवरी 2020 में अमेरिकी सदर के हिंदुस्तानी दौरे के दौरान हुई थी। उधर फ़लस्तीनी मुज़ाहमत तहरीक हमास ने गज़ा में इसराइली फ़ौज पर हमला करके क़ाबिज़ सेहूनी फ़ौज को भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाया है। गज़ा में 7 अक्टूबर से इसराइली हमले में जारी हैं, जिसमें अब तक 41,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और 1 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। गज़ा का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जिसके बायस गज़ा के शहरी मगरबी किनारे में क़ायम पनाह गुज़ीन कैंपों में रहने पर मजबूर है। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गज़ा पर मुसलसल बमबारी का सिलसिला जारी है और सेहूनी फोर्सेस तमाम तर कोशिशों के बावजूद अपने यरगमारियों को छुड़वाने में अब तक नाकाम रही हैं, जिस पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को अपनी ही अवाम की शदीद बरहमी का सामना है। गज़ा में इसराइल की शदीद बम्बाई का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद लोग मलबे में दब गए। सेहूनी फ़ौज ने ब्रिज में ताज़ा तरीन हमले किए हैं, जिसमें इमारतें मलबे का ढेर बन गई, जिसके नतीजे में 80 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू कार्रवाइयों के दौरान 8 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि रेस्क्यू एहलकारों पर भी इसराइल ने हमले करके इमदादी कामों में मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की। ईरान के सदर मसूद ने कहा है कि अगर अमेरिका अमली तौर पर यह ज़ाहिर करता है कि वह ईरान का दुश्मन नहीं है, तो ईरान अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरानी सदर ने कहा कि हम अमेरिका से दुश्मनी नहीं रखते, उन्हें अमली तौर पर अपनी खैर सगाली का मुज़ाहरा करते हुए हमारे ख़िलाफ़ अपनी दुश्मनी ख़त्म कर देनी चाहिए। हम अमेरिकियों के साथ भाई भाई हैं। उधर चीन के शहर शंघाई में 75 साल के ताक़तवरतरीन समुद्री तूफ़ान ने तबाही मचा दी है। समुद्री तूफ़ान के ज़ेर असर 151 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार की तूफ़ानी हवाओं से दरख्त, इमारतों की खिड़कियाँ, इश्तहारी बोर्ड्स उड़ गए। तूफ़ानी हवाओं के बायस सड़क पर चलता ट्रक भी उड़ गया। राहगीरों ने दरख्तों, खंभों के सहारे खुद को आड़ने से बचाया। समुद्री तूफ़ान के बायस 1400 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि 4 लाख से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। जनूबी कोरिया की फ़ौज ने इतला दी है कि शुमाली कोरिया ने शिमाल मशरिक़ की तरफ कम फासले तक मार करने वाली कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। जनूबी कोरिया के जनरल स्टाफ ने शुमाली कोरिया की मिसाइल तजर्बे के हवाले से बयान दिया है। बयान में कहा गया है कि मकामी वक़्त के मुताबिक शाम 7 बजे करीब शुमाली कोरिया ने कैचून के इलाके से शिमाल मशरिक़ की जानिब बहुत से कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। बयान में कहा गया है कि मिसाइलों ने तकरीबन 400 किलोमीटर का फासला तय किया है। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया के इक़दामात की शदीद मज़म्मत की है। इधर आज 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतख़ाबात मुनक़्क़िद हुए हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हो रहे असम्बली इंतख़ाबात को इंतहाई अहमियत के हामिल करार देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस है, जिसमें CPIM का भी एक उम्मीदवार है, को लोग वोट डालेंगे। 10 वर्षों के बाद इलेक्शन होने के बारे में पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 10 वर्षों के बाद ये इंतखाबात हो रहे हैं, लिहाजा ये इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। लद्दाख अलग हो गया, जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया है, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लें, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, हर जगह हमारे लोग हैं और जितने वोट पड़ेंगे उतना अच्छा है, जमहूरियत के लिए अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है। फ़िलहाल जो मैंने अपने साथियों से मौके पे बात की, भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ रहे हैं हर इलाके से और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुद्दे इस इलेक्शन में बहुत हैं। हमने कोशिश की कि
मुद्दों के हवाले से हम लोगों से बात करें और उन्हें बताएं कि अगर 5 साल के लिए उन्होंने हमें अपनी कीमती वोटों से नवाजा तो हम उनके लिए क्या करेंगे। और 8 अक्टूबर तक इंतज़ार करेंगे, लेकिन अभी तक जो रिपोर्टें आ रही हैं अच्छी आ रही हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। लबनान में पेजर्स में धमाके, 8 हलाक, इसराइली हैकिंग का दावा, 2800 से ज़ायद जख्मी। धमाकों में इस्तेमाल किए गए पेजर्स ताइवान की कंपनी नहीं बनाए, ताइवानी कंपनी गोल्डपोर ने सख्ती से इल्ज़ाम को किया मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की क़रारदाद के हक़ में आज हो रही है वोटिंग, इसराइल से गज़ा में गैर क़ानूनी मौजूदगी ख़त्म करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 21 सितंबर को 3 रोज़ा दौरे पर होंगे अमेरिका रवाना, क्वाड सरबराही इजलास और UN जनरल असम्बली से करेंगे खिताब। गजा में हमास का इसराइली फौज पर हमला, कमांडर और पहली खातून फौजी समेत 4 अहलकार हलाक। और गजा में इसराइल की शदीद बमबारी, इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, मुतअद्दिद अफराद दब गए। 7 अक्टूबर से अब तक तकरीबन 40,000 अफराद शहीद। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ, और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।